Hello students, very good afternoon to all of you. This is your English teacher Mr. Devesh Singh. Today we are going to read the remaining portions of this chapter conjunctions. In this remaining portion of this chapter we are going to study the portion correlative conjunctions. Correlative conjunctions. Now, let's see at first the definition of correlative conjunction. What are correlative conjunction? What is its sense and why it is also mentioned here as a correlative conjunction. Now, let's see. These conjunctions convey their full sense. These conjunctions convey their full sense when they are used in pairs. When they are used in pairs, they are often called correlative conjunction. Means to say that कि वे कंजक्शन जो कि फुल सेंस को पूरे अर्थ को कन्वे करते हैं कब? जब व्हेन दे आर यूज्ड इन पेयर्स, जब वे पेयर्स के रूप में कपल के रूप में जब वो शो किए जाते हैं, यूज्ड किए जाते हैं, इस रूप में जब वो कपल पेयर्स के रूप में कन्वे किए जाते हैं तो दोज आर कॉल्ड correlative conjunction. These are often called correlative conjunction. Some of the correlative conjunctions are coordinating. अभी आपको coordinating conjunctions हमने आपको बताया था. Conjunctions of time, conjunctions of place, conjunctions of तो frequency, all those things that is related to subordinating conjunction. Here, conjunction of contrast, conjunction of condition, conjunction of comparison, everything you have in the coordinating conjunction. Here, students, you have to also see that these correlative conjunctions are coordinating, while some of them are subordinating. Some conjunctions are coordinating and some conjunctions are subordinating conjunctions here. Okay, now you see at first the correlative conjunction or some are subordinating conjunction. Now you let's see. At first you see either are students, either are a correlative conjunction. This is also coordinating conjunction. This is also coordinating conjunction. Here, either are, where you will use either are in a sentence where the sense of sentence are in pairs. Okay, the sense of sentence are in pairs, and there you have to choose only one option. Means the sense is alternative and sentence is in affirmative. At that time you will use either are. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं.
देखिए आर एक्सेप्ट पनिशमेंट, सेंटेंस में दो पेयर्स हैं, यू मस्ट अपोलाइज और एक्सेप्ट पनिशमेंट। तो या तो आप क्षमा मांगो, या तो आप क्षमा मांगो या फिर पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। तो देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए या तो इसके पहले आ गया और दूसरे क्लॉज को, दूसरे पेयर सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या आ गया एक्स और, यानी आइदर आर, यू मस्ट आइदर अपोलाइज और एक्सेप्ट पनिशमेंट। These are the example for this correlative conjunction. Okay, another examples you can see. Okay students, now let's see the next example. You can see here next example. She will either visit you today or meet you tomorrow. यानी टुडे में भी वो मिल सकती है, टुमारो में भी मिल सकती है। ऑप्शन सेंटेंस में दिया हुआ है टुडे और टुमारो, तो या तो आज या तो कल, या तो आज या कल। तो जब इस तरह का सेंस हो, या तो आज या कल, या तो तुम या तो मैं, तो इस तरह के सेंटेंस में आप देख सकते हैं शी विल आइदर विजिट यू टुडे और मीट यू टुमारो। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज यहाँ पे सेंटेंस में कर सकते हैं। ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट। Neither nor, neither nor, neither nor. In a sentence where negative sentence, जहाँ पे negative sense हो, when sentence is in negative, and there are two pairs of sentence. So to join the sentence, you will use there neither nor, neither nor। जैसे न तो मैं न ही वह, न तो मैं न ही वह, यह काम कर सकते हैं। न तो तुम न तो तुम्हारा मित्र वहाँ पहुँच सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो हो, आपको दोनों में से कोई नहीं, जो सेंटेंस में दो आपके सब्जेक्ट दिए रहेंगे और दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट उस दिए हुए टास्क को नहीं कर पा रहा है, जो भी उसमें इवेंट्स, जो भी उसमें एक्शन होना है, उस एक्शन में दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में नाइदर नॉर का यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हैं। Neither you nor your friend can do this. न तो तुम न ही तुम्हारे फ्रेंड। Neither you nor your friend, neither you nor your friend, न तो तुम न ही तुम्हारे फ्रेंड, कोई इस काम को नहीं कर सकता है। मीन्स दोनों के दोनों में कोई उस एक्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सो एट दैट टाइम यू विल यूज देयर neither nor। ओके, like that in other students। Let's see. Neither Ravi nor Ram was present in school। अब देखिए यहाँ पे
न तो रवि न ही राम, दोनों में से कोई भी स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे। स्कूल में प्रेजेंट होने यहाँ पे एक्शन है और दोनों में से कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना इधर ना का यूज हुआ। दूसरी चीज़ एक और आप समझ लीजिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, क्या रवि भी है और राम भी है। तो दो सब्जेक्ट के होने के बाद आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पे वाच जो वर मत लगा देना, प्लूरल के रूप में वर WER वर का यूज मत कर देना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्यों? दो रहने पर वर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, ना इधर ना, यानी दोनों में से कोई नहीं, यानी यहाँ पे सेंटेंस प्लूरल नहीं शो हो पा रहा है, इसलिए इस कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ना इधर रवि ना वाज प्रेजेंटिव स्कूल। ऐसे आप यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज यहाँ पे करेंगे। और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, देखिए बोथ एंड मीन्स, अगर एक एग्जाम्पल आ गया जिसमें एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के ऊपर दो एक्शन को फोकस किया जा रहा है, जैसे द स्टूडेंट वाज फाइंड एंड एक्सपेल्ड, द स्टूडेंट वाज फाइंड एंड एक्सपेल्ड, द स्टूडेंट वाज फाइंड एक्सपेल्ड, फाइंड भी किया गया, उसको बाध्य भी किया गया। तो क्या करें, स्टूडेंट वाज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड, दोनों किया गया स्टूडेंट के साथ, उसे फाइंड भी किया गया और उसे बाध्य भी किया गया, बाहर भी किया गया। तो इस तरह के सेंटेंस में बोथ और एंड का यूज करेंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ पे द स्टूडेंट वाज बोथ फाइंड एंड यहाँ पे बोथ और एंड जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोथ और एंड दोनों का यहाँ पर यूज होगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स, बोथ एंड, स्टूडेंट वाज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, so that, very important, it is very important for relative conjunction, so that का यूज कहाँ करना है आपको। जैसे एक काफ़ी इजी सेंटेंस आपके सामने अक्सर आते रहते हैं कि वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, ठीक है ना, वह इतना कमज़ोर है कि काम नहीं कर सकता, वह इतना पतला है कि हैवी वेट को उठा नहीं सकता। तो जहाँ इस तरह के सेंटेंस आएंगे उस कंडीशन में सो दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको शुरू करें, द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए ध्यान से, द मैन इज सो ओल्ड, सो यहाँ पे आ गया, एडजेक्टिव के पहले सो आ गया और दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करने के पहले यहाँ पे दैट ही आ गया, दैट ही कैन नॉट वॉक। द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ऐसे सेंटेंस को आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका सो दैट का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, very important, no sooner or then, no sooner or then, it's very very important, no sooner or then का यूज करें। ऐसे आप सुने ऐसे
कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा आग लग गई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा आग लग गई, या ज्यों ही मैं विद्यालय पहुँचा घंटी बज गई। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज यहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, नो सूनर, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नो सूनर का यूज करते हैं। सबसे पहले नो सूनर लिखेंगे, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट का रूप लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस है जिसको बनाना है आपका ट्रांसलेशन, तो उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले यूज करते हैं, और वो भी इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद से देन का यूज करते हैं, और फिर दूसरे जो क्लास आपको दिया, दूसरा जो सेंटेंस का पेयर्स दिया हुआ है उसको फिर सिंपल पास्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल रखेंगे, नो सूनर हैड आई entered the stadium then I heard the sound of bell। देखिए ध्यान से, कैसे यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सेंटेंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो सूनर हैड आई इंटर्ड द स्टेडियम देन आई हर्ड द साउंड ऑफ बेल। ठीक है। तो कैसे यहाँ पे नो सूनर का यूज सबसे पहले आप करेंगे, उसके बाद से एन पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव आप यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव आप पास्ट परफेक्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे देन, जो देन यहाँ पे दिया हुआ है आपका देन को लगाएंगे, और फिर जो बचा हुआ आपका पार्ट्स है उस बचे हुए पार्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोरिलेटिव कंजक्शन, इस तरह से कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो okay, goodbye everyone, have a nice day।